सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी मेरी हर कमी को है तू लाज़मी जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला जिसे मैं था भूल तो आया वो वजूद मिला जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो जब से मैं तन्हापन से तुझे याद किया दिल समझा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल হলিউড বা বলিউড নহয় আজি আচলতে আমি কথা পাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ পাঠশালাৰ ৰিচা আৰু শুভমৰ এক প্ৰেম কাহিনীৰ বিষয়ে কিয়নো প্ৰথমে মই দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে শুভম মুম্বাইৰ নিবাসী তেওঁ প্ৰেয়সী ৰিচা পাঠশালাত এতিয়া ভাড়াঘৰত থাকে বিশেষভাৱে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এক বিৰল আচলতে প্ৰেম কাহিনী ৰিচা দুয়োখন ভৰিৰে জন্মৰ পৰাই আচলতে বিশেষভাৱে সক্ষম মা দেউতাকে স্কুলৰ পৰা এবাৰ লৈ যায় আৰু লৈ আহে আৰু ষ্টাৰ মেকআপৰ জৰিয়তে শুভমে ৰিচাক লগ পাইছিল কিন্তু আজি শুভমে এটা বিশেষ কাৰণবশতঃ তেওঁৰ মাতৃক হেৰাব লগা হৈছে আৰু মুম্বাইৰ আচলতে যি ফুটপাথত আছে সেই ফুটপাথত তেওঁ নিজে গান গাই যি আচলতে টকা পইচা পায় সেই টকা পইচাৰে তেওঁ নিজেও চলি আছে আৰু মাকো চিকিৎসা কৰিছিল আৰু এতিয়া পাঠশালাত ভাড়া থাকি আছে তেওঁৰ প্ৰেয়সীৰ লগত মই কথা পাতিম কেনেকৈ লগ পাইছিলা শুভমক ষ্টাৰ মেকাৰৰ জৰিয়তে লগ পাইছিলোঁ এখেতক ষ্টাৰ মেকাৰৰ এদিন মই এখেতক লগ পালোঁ লগ পাওঁতে এখেতৰ লগত মই কথা পাতিলোঁ এখেতৰ বিষয়ে জানিলোঁ এখেতৰ কথা মোক ক'লে মই মোৰ কথা এখেতক ক'লোঁ তাৰপিছত বুজাবুজি হ'ল এনেকৈ কথা পাতিলোঁ কথা পতাৰ পিছত দুয়োটাৰ মাজত প্ৰেম হ'ল তাৰপিছত এদিন মানে অসমত আহি কিনে মোক বিয়া কৰাবৰ কাৰণে অসমত আহি প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে অসমত আহি আৰু মাকৰো সেই ইচ্ছা আছিল বিয়া চোৱা নিজৰ পুত্ৰৰ বিয়া চোৱাটো মাকৰ ইচ্ছা আছিল সেইকাৰণে অসমত আহি কিনে মোক বিয়া কৰাই কিনে আৰু গৈছে অসমত এৰি মুম্বাইলৈ গুচি গ'ল মাকৰ ব্ৰেইনটো মাৰিছে তাৰ কাৰণে তাৰপিছত যেতিয়া মাকৰ অপাৰেশ্যন হৈছিল তেতিয়া মাকৰ 2-3 টাইমৰ অপাৰেশ্যন হওঁতে মানে মৃত্যু হৈছিল তাৰপিছত মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই জানাই মানে মাকক মানে ভিডিঅ' কলত মই দেখা পাইছিলোঁ তাৰপিছত ই মুম্বাইত যোৱাতে মাকক হস্পিটেলত লৈ গ'ল তাৰপিছত মাকৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে তাৰপিছত অপাৰেশ্যন কৰোঁতে মাকৰ 2-3 টাইমৰ অপাৰেশ্যন হৈছিল তাৰপিছত মাকে নাপাইছিল তাৰপিছত ই কেইদিনমান পিছত ডিপ্ৰেশ্যনত গুচি গৈছিল মই ইয়াক সঁহাৰি দিছিলোঁ তাৰপিছত কেইদিনমান ছাপৰ্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত কেইদিনমান পিছত অসমত আহিবৰ কাৰণে সি তাৰে মুম্বাইৰ ঘৰ বেছি কিনে মোৰ কাৰণে চিৰদিনৰ কাৰণে অসমত আহিব তোমাক বিয়া কৰাইছে নে বিয়া কৰাইছে পৰে হৰিশ্বৰ দেৱী মন্দিৰত বিয়া কৰাইছে মই কথা পাতিবলৈ মই বিচাৰিম মই শুভমৰ লগতো কথা পাতিম শুভম
रोमियो जूलियट के बारे में हम सुने थे, आजमहल के बारे में भी सुने थे, वो उसके प्रेयसी के लिए वो ताजमहल जो बनाया था। अच्छा। ये एक अलग लेवल का जो तुम्हारा लव स्टोरी है, मुंबई से आके पाठशाला में वो रैन में रह के, मतलब क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मेरे लिए ये सब बिल्कुल नॉर्मल है और ये रीशा भी मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल ही है। वो बस इसका लेग्स में बचपन से समस्या है, तो बस यही सॉल्व हो जाए तो मेरी बस यही प्रेयर है इसके लिए कि ये ठीक हो जाए, जल्द से जल्द उसका इलाज हुए। ऋचा को तुमने कैसे वो मीट किए थे, कैसे ये सब हो, लव स्टोरी के बारे में कुछ? ये रीशा स्टार मेकर पे मिली थी मुझे। हाँ। तो ये मतलब सुनती थी सॉन्ग्स वहाँ पे, तो इसने मुझे मेरा सॉन्ग उसको पसंद आया, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम सिखाओगे क्या मुझे सिंगिंग। तो मैंने बोला था कि हाँ पहले तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं है। फिर इसने अपनी सिचुएशन के बारे में बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ऐसी प्रॉब्लम है इसको। मैं सोचा कि हाँ मैं सिखाऊंगा फिर इसको, और जितना मैं सिखाऊँ, क्योंकि ये फिर घर पे अगर ये सीख जाएगी तो बाहर तो जा नहीं पाएंगी, तो घर पे यूट्यूब चैनल खोल के अगर सिंगिंग की वीडियोस थोड़ी अपलोड करेगी तो थोड़ा इसका अर्निंग्स का भी यूट्यूब वगैरह से हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा इसके चैनल का, थोड़ा सा घर पे बैठ के इसकी अर्निंग्स का एक सोर्स बन जाएगा। और हो सकता है कि अच्छा संगीत गाने लग गई तो प्रोफेशनल भी बन जाए। बिल्कुल। हमने सुना भी मुंबई की स्ट्रीट पे वो तुमने गाना गाए थे। बैंक स्टैंड एक जगह है मुंबई में, बांद्रा में, एसआर के शाहरुख खान का घर है सर का, वहाँ पे उसके बाहर ही बहुत बड़ा समुंदर है, और वहीं पे बहुत सारे स्ट्रीट लाइफ होती है, वहाँ पे लोग आते हैं माइंड क्लाइम करने के लिए। तो वहीं पे मैं एक सिंगिंग करता था, तो जो भी अर्निंग्स होती थी वहीं से होती थी मेरी भी। तुम्हारा मम्मी का जो इंसिडेंट हुआ था वो किसके बारे में क्या? मम्मी को मेरे ब्रेन ट्यूमर हुआ था, तो मम्मी का 3 ऑपरेशन हुआ। हमने सुना है कि तुमने तुम्हारा जो घर है वो बिक के यहाँ पर ऋषा के लिए मैं चले गए। ऋषा को मुंबई लेके जाने वाला था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ऋषा ने मुझसे बोला कि उसको स्टडीज़ करनी है, क्योंकि उसका पाठशाला में ही स्टडीज़ थी सारी ना, असामीज मीडियम में। तो मुंबई में वो जाती तो उसकी स्टडीज़ सारी वेस्ट हो जाती है सबसे पहली बात, और इसकी हेल्थ भी थोड़ी कमज़ोर रहती है। तो मुंबई में तो पोल्यूशन कितना है, तो यहाँ पे अगर असम में ही इसकी जन्मभूमि में ये रहेगी तो इसकी हेल्थ भी अच्छी होएगी, नेचुरल हवा भी इसको मिलेगी अच्छी, यहाँ पे इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और मुंबई में जाती तो उसका हेल्थ और ख़राब होते रहता, क्योंकि वहाँ का खाना पीना और रहन सहन अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से, तो और अफोर्ड करना भी मुंबई में बहुत मुश्किल है, इसलिए वहाँ का मैं सेल करके यहाँ पे आ गया। ऋचा के साथ लगभग अभी कितने साल रिलेशन में आए हो? असमीज लैंग्वेज कुछ सीखा है या सीखने के बारे में कुछ सोचा है? असमीज में सीख गया हूँ, लाइक 40%। हाँ। समझ में पूरी आती है मुझे, आप जो भी मुझे बोलोगे समझ में मैं पूरा समझ जाऊँगा, लेकिन फ्लुएंट नहीं है। वो थोड़ा टाइम लगेंगे। ठीक है, हम गाना सुनते हैं तुम्हारा। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।
ধন্যবাদ। মই পুনৰ কৈছোঁ, এয়া আচলতে হলিউড বলিউড নহয়, অসমৰে বজালী জিলাৰ পাঠশালাৰ এই ৰিচা আৰু শুভমৰ যি প্ৰেম কাহিনী, এয়া ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমবাসী আচলতে ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে। शुभम, मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ। अभी जो जनरेशन है, उस जनरेशन में हम लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे तो मतलब वो क्या होता है, फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में होता है, लुक मैटर करता है, एज मैटर करता है। तुमने ऐसा क्या देखा रिचा में जो तुम मुंबई से यहाँ पर दौड़ चले आए? रिचा में मैंने पूरी फैमिली देखी मेरी, जो भी मेरी मिसिंग थी अभी तक मुझे नहीं मिली। तो जस्ट लाइक मम्मी के जाने के बाद भी मम्मी की कमी मुझे महसूस नहीं होती, तो इसे ट्रू लव कहते हैं। और सेकंड चीज़ कि अगर कोई इंसान, मेरा जो लव है मेरा डिफरेंट टाइप का, ऐसा नहीं है, नॉर्मली है, लेकिन कैसा, ये मेरे बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, मैं इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जस्ट लाइक अगर मुझे कुछ होएगा तो ये नहीं सर्वाइव कर पाएगी, और इसे कुछ हुआ तो मैं एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो अगर कोई इंसान किसी पार्टनर के साथ है और अगर वो इंसान वो नहीं रहा उसके साथ, और वो किसी और के साथ फिर वो पार्टनरशिप में आ रहा है या दूसरी शादी कर रहा है, तो वो इंसान सही नहीं है, फिर वो लव ही नहीं है फिर। ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনা পালে ৰিচা আৰু শুভমৰ যি ভালপোৱা প্ৰেম কাহিনী। পুনৰ আৰু এটা বিষয়লৈ আহিছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পোষ্টটো চাব নে নেচাব সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু ৰিচাই এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছে। কি অনুৰোধ আমি আচলতে জনাবলৈ মই যত্ন কৰিম। কি জনাবা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামাক, কি জনাবা? মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ CM ছাৰক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোক যাতে এটা সংস্থাপন দিয়ে, যাতে এটা চাকৰি অন্তত মই কৰিব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ ৰিকুৱেষ্ট। যাতে মই চাকৰি কৰি কিনে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব পাৰোঁ, সেইটোৱে মই বিচাৰোঁ। কি পঢ়ি আছো এতিয়া তুমি? এতিয়া মই ডিগ্ৰী কৰি আছোঁ, ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱা নাই। এই ক'ভিডৰ কাৰণে মোৰ 2 বছৰ মানে লছ হৈছিল, সেইকাৰণে এতিয়া ডিগ্ৰী কমপ্লিট হোৱা নাই বৰ্তমান এতিয়া হ'ব, লাষ্ট সেমিষ্টাৰটো চলি আছে। शुभम के साथ भी फिर से एक बार बातें करना चाहेंगे। शुभम, असम का जो एक फेमस सिंगर है जुबिन गार्ग, उसके बारे में तो जानते ही हो तुम। हाँ। 2 शब्द उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? वो तो आसाम के किंग हैं। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, जुबिन गार्ग एक ऐसे इंसान है कि वो सब में मतलब अपनी फैमिली ही देखते हैं, क्योंकि वो इतने लोगों की मतलब हेल्प करते हैं और इतने अच्छे हैं, उनका माइंडसेट इतना अच्छा है, उनकी वॉइस इतनी अच्छी है। ओवरऑल वो बेस्ट सिंगर वर्ल्ड के, आसाम के नहीं पूरे वर्ल्ड के बेस्ट सिंगर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं उनके गाने देख के बचपन से सीखता आया हूँ। जस्ट लाइक उनका अली सॉन्ग आया था, वो सुनने के बाद मुझे ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली कि मैं सिंगिंग पे और आगे बढ़ूँ, बिकॉज वो तो लेजेंड है। और मेरा ड्रीम है कि उनके साथ एक बार मैं सिंगिंग करना चाहता हूँ, मूवी में, उनकी मूवी में सिंगिंग करना चाहता हूँ, उतना काबिल बनना चाहता हूँ कि उनके साथ मैं, मेरे लिए बहुत सौभाग्यवत बात हुई थी कि मैं उनके साथ खड़ा भी हो जाऊँ एक दिन और उनसे बात भी कर लूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बेस्ट इंसान है वो। জুবিন গাৰ্গলৈ আচলতে অনুৰোধ কৰিছে, যদি কেতিয়াবা জুবিনৰ লগত গান গোৱাৰ সুযোগ পায় বা জুবিনৰ চিনেমাত যদি তেওঁ সুযোগ পায়, তেওঁক ল'বলৈ আচলতে অনুৰোধ জনাইছে আৰু এবাৰ লগ কৰাৰ যে আশা, সেই আশা আচলতে কৈছে। আৰু ৰিচা ইতিমধ্যে কৈছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যে এটা কৰ্ম সংস্থাপন লাগে, যিহেতু এতিয়া বৰ্তমান কৃষ্ণকান্ত সন্দিয়ৰকৈ জুনিয়ৰ ডিগ্ৰী কলেজত স্নাতকোত্তৰ পঢ়ি আছে। পঢ়া শেষ কৰাৰ লগে লগে যাতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰিচাক কিবা এটা কৰ্ম সংস্থাপন দিব পাৰে, তাৰে আমি আচলতে এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ।